My dear students, I am your English teacher Amrendra Kumar. In last class, I gave you some exercises to complete from your grammar book. Today I will discuss those answers. First question is from your English grammar book. Enjoy with grammar. First question is write D for declarative, I for imperative, E for exclamatory and IM for imperative. I have already taught you 4 types of sentence. What a beautiful painting. This sentence express surprise. यह सेंटेंस सरप्राइज या खुशी व्यक्त करता है, कितना सुंदर फूल है, इसलिए यह सेंटेंस है ई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. I made it myself. It is a simple sentence, so it is positive sentence, so it is I. D यह डिक्लेरेटिव है. D. When did you make it? यह क्वेश्चन है. I इंट्रोगेटिव I. Tell me when. इस सेंटेंस में पूछा जा रहा है, एडवाइस या ऑर्डर है, इसलिए आई एम इम्परेटिव सेंटेंस. आई मेड इट लास्ट वीक यह स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, यानी कि डी डिक्लेरेटिव सेंटेंस. वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी क्वेश्चन है. आई फॉर इंट्रोगेटिव. I for interrogative. Why are you डिस्टर्बिंग मी क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव. आई गो अवे ऑर्डर है. आई एम इम्परेटिव. आई एम वॉचिंग बटरफ्लाइज सिंपल स्टेटमेंट है. डी डिक्लेरेटिव. अनदर क्वेश्चन है बुक में नीचे, फिर द टेलीफोन इज रिंगिंग, ये हो जाएगा डी डिक्लेरेटिव. सिंपल बात है. व्हाट अ वंडरफुल इन्वेंशन टेलीविज़न इज. इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट टेलीविज़न, सो इट इज़ एक्सक्लेमेटरी. ई फॉर एक्सक्लेमेटरी. डू यू वांट टू गो नाउ इट इज़ क्वेश्चन. आई फॉर इंट्रोगेटिव. आई. प्लीज़ मूव योर बाइक it is request, so I am imperative. Is Shikha coming to the class or not? Is Shikha coming to the class or not क्वेश्चन है. I interrogative. I will go and fetch the newspaper. D declarative. Don't make a noise एडवाइस है, ऑर्डर है. I am imperative. We can't afford any more repairs at present. We can't afford any more repairs at present. D declarative. आगे के क्वेश्चन फिर सी नंबर. ओपन द डोर राज प्लीज रिक्वेस्ट, यानी इम्परेटिव. आई एम अप स्टेयर्स. डी डिक्लेरेटिव. सिंपल बात है. इट वाज अ डिलीवरी मैन who had rung the doorbell पॉजिटिव बात है, यानी डी डिक्लेरेटिव.
जस्ट लीव द पैकेट्स इन द हॉल। एडवाइस है आई एम, इम इम्परेटिव। व्हाट इज ऑल दिस क्वेश्चन है आई इंट्रोगेटिव। माई ब्रदर जॉन इज गुड एट दैट थिंग पॉजिटिव स्टेटमेंट, सो डी डिक्लेरेटिव डी। गिव हिम अ रिंग एडवाइस ऑर्डर है आई एम, हिम इम्परेटिव। लेट अस अनपैक इट एंड हैव अ लुक एट द इंस्ट्रक्शंस एडवाइस है आई एम, इम इम्परेटिव। अगला क्वेश्चन है राइट एस फॉर सेंटेंस एंड पी फॉर अ फ्रेज। अंडरलाइन द वर्ब इन सेंटेंसेस। We know that sentence has verb and sentence and phrase both are group of words. Sentence has verb but phrase doesn't have any verb. Phrase में verb नहीं होती है, sentence में verb होती है। The boys are all musicians, इसमें verb है are, इसलिए sentence है s। On the wall group of words है ये, इसमें verb नहीं है, so it is p phrase। Her face told a sad tale, इसमें verb है told, so it is a sentence। In the ocean there is no verb in this group of words, so it is phrase p। During the recess, इस group of words में भी verb नहीं है, इसलिए phrase है p। The students bowed to the principal, इसमें verb है bowed, इसलिए sentence है s। In the afternoon verb नहीं है p phrase। The child got lost in the fair, verb है got, इसलिए sentence s। Next question, fill in the blanks with a suitable word or words। No, first chapter end, here end the first chapter of your grammar book। Now starts the second chapter. Second chapter name is sentence structure। Sentence structure chapter number 2. I am going to speak the answers। Fill in the blanks with a suitable word or words। I wrote dash a long and interesting letter। I wrote many words you can fill here। My friend भर सकते हैं, him भर सकते हैं या my friend भर सकते हैं, my uncle भर सकते हैं। The salesman showed dash a white dress। The salesman showed, salesman मुझे white dress दिखाया। showed me या showed him, me या him या her या them भर सकते हैं। she sent dash a gift parcel। she sent gift parcel she sent me भर सकते हैं, him भर सकते हैं, her भर सकते हैं, her friend भर सकते हैं। the teacher asked, यहाँ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट से पूछें, द स्टूडेंट भर सकते हैं, राजू भर सकते हैं, मी भर सकते हैं। नेक्स्ट है सनी हैज़ सोन द टीचर। द टीचर यहाँ भर सकते हैं। सनी हैज़ सोन द टीचर हिज रिपोर्ट बुक। द प्रिंसिपल, द डायरेक्टर, टीचर प्रिंसिपल डायरेक्टर यहाँ भरा जा सकता है। दे हैव गिवन डैश सम न्यू बुक्स। दे हैव गिवन मी भर सकते हैं, राम भर सकते हैं, मोहन भर सकते हैं, सीता भर सकते हैं। दे हैव गिवन मी, राम, मोहन, सीता सम न्यू बुक्स। द होस्ट गेव डैश अ बुके ऑफ फ्लावर्स।
द होस्ट गेव द चीफ गेस्ट भर सकते हैं। द होस्ट गेव द चीफ गेस्ट अ बुके ऑफ फ्लावर्स। होस्ट ने गेस्ट को फ्लावर बुके दिया। मिस्टर चार्ल्स बॉट डैश अ पपी। मिस्टर चार्ल्स बॉट हिज सन, अपने बेटे को खरीद दिया। मिस्टर चार्ल्स बॉट हिज सन अ पपी। चैप्टर 2 नेक्स्ट क्वेश्चन। चैप्टर 2 नेक्स्ट क्वेश्चन इज a passage. In the passage we have to fill suitable words. चैप्टर 2 का सेकेंड क्वेश्चन है पैसेज है सुटेबल वर्ड्स। इसमें भरना है इट इज़ अ हॉलीडे। हॉलीडे है एंड जॉन फैमिली आर एट होम। हॉलीडे है, जॉन का फैमिली घर पर है। मिसेज जॉन इज बिजी इन द किचन। मिसेज जॉन किचन में बिजी है। सी इज बेकिंग हर फैमिली। बेक मीन्स बनाना, ब्रेड, बेक ब्रेड, ब्रेड केक, केक बना रही है। सी इज बेकिंग हर फैमिली और केक यहाँ भर देंगे। ग्रैंडमा इज विथ बेबी। ग्रैंडमा बेबी के साथ है। सी इज टेलिंग, बेबी के लिए हिम यूज करेंगे। सी इज टेलिंग हिम मीन्स उसे स्टोरी कह रही है ग्रैंडमा बेबी को। सी इज टेलिंग हिम, हिम उससे माने किसे, बेबी को स्टोरी कह रही है, हिम स्टोरी। ग्रैंडपा, ग्रैंडफादर, ग्रैंडपा इज शोइंग समीर। यहाँ समीर होगा क्योंकि आगे चर्चा है। ग्रैंडफादर एंड समीर आर स्टाम्प कलेक्टर्स, तो यहाँ समीर की चर्चा है तो समीर। ग्रैंडपा इज शोइंग समीर अ स्टाम्प कलेक्शन। ग्रैंडफादर एंड समीर आर, ग्रैंडफादर एंड समीर आर स्टाम्प कलेक्टर्स। मिस्टर जॉन इज एट द डोरवे। मिस्टर जॉन दरवाजे पे है। ही इज टॉकिंग टू हिज नेबर, अपने पड़ोसी से बात कर रहा है। ही इज टेलिंग हिम, नेबर मीन्स पड़ोसी, पड़ोसी के लिए वर्ड यूज होगा हिम। ही इज टेलिंग हिम अ जोक, उसे एक जोक सुना रहे, किसे, पड़ोसी को। कम इन मिस्टर आसिफ। कम इन मिस्टर आसिफ, लेट मी शो यू आवर डैश सेज समीर। समीर भी वहाँ है, वह पड़ोसी से बोल रहा है कम इन मिस्टर आसिफ, पड़ोसी का नाम मिस्टर आसिफ है। कम इन मिस्टर आसिफ, लेट मी शो यू, मैं आपको स्टाम्प कलेक्शन, आवर स्टाम्प कलेक्शन से समीर। समीर कहता है कि आइए मैं आपको अपना स्टाम्प कलेक्शन दिखाता हूँ। तो चैप्टर 2 ग्रामर चैप्टर 2 फिनिश हियर। नाउ वी कम टू ग्रामर चैप्टर नंबर 3, इंग्लिश ग्रामर चैप्टर नंबर 3। ग्रामर नेम इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। चैप्टर नेम पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, चैप्टर 3 ग्रामर। चेंज द पॉजिटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव यूजिंग नॉट, नॉट का शॉर्ट फॉर्म एन ऊपर अपस्ट्रॉफ टी या NOT, नॉट, नॉट लिखेंगे या नॉट का शॉर्ट फॉर्म भरना है। 2 क्वेश्चंस आर अबव, 2 क्वेश्चंस आर डन, वो 2 बना दिया गया। आई एंजॉय स्विमिंग, ब्रैकेट में है नॉट का शॉर्ट फॉर्म। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताया था कि सेंटेंस को नॉट मीन्स निगेटिव बनाना है, सारे सेंटेंस को, पॉजिटिव सेंटेंस को निगेटिव में। तो पॉजिटिव को निगेटिव बनाने के लिए मैं आपको बताया था कि पॉजिटिव में अगर भी वन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहे तो डू नॉट, सेकेंड फॉर्म रहे तो डिड नॉट, थर्ड और फिफ्थ फॉर्म रहे तो डज नॉट यूज होता है। आई एंजॉय स्विमिंग इसलिए यहाँ बनाया हुआ है। V1 है एंजॉय, इसलिए फर्स्ट डू नॉट यूज होगा,
नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट एंजॉय स्विमिंग। सेकेंड नंबर, यू मस्ट चेंज योर पासवर्ड। यहाँ नॉट लिखना है, नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं देना है। तो ये तो आसान है, यू मस्ट नॉट, नॉट सिर्फ ऐड कर देंगे। थर्ड नंबर, वी विजिटेड द लोटस टेम्पल व्हेन वी वर इन दिल्ली। नॉट का शॉर्ट फॉर्म देना है। और फिर देखिए वी विजिटेड, V2 है तो डिड नॉट होगा, वी इसका बनेगा वी डिड नॉट विजिटेड नहीं विजिट, क्योंकि डू डज डिड के बाद हमेशा V1 आता है, ये भी मैंने रूल में लिखाया था। वी डिड नॉट विजिट, इसके बाद टोटल लिख देंगे, द लोटस टेम्पल व्हेन वी वर इन दिल्ली। डी नंबर, आई विल बी सीइंग प्रिया टुमारो। नॉट का शॉर्ट फॉर्म देना है, तो आई विल वॉन्ट, नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा आई विल बी विजिटिंग, आई विल बी सीइंग प्रिया। विल बी का आई शॉर्ट फॉर्म विल नॉट नहीं होगा, वोंट, विल नॉट का शॉर्ट वोंट, विल नॉट का शॉर्ट होगा, विल नॉट का शॉर्ट होता है वोंट, ऐसे लिखना है। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता, विल नॉट का शॉर्ट ऐसे वोंट, विल नॉट का शॉर्ट वोंट ऐसे लिखना है। तो आई विल बी सीइंग प्रिया का हो जाएगा आई वोंट बी सीइंग प्रिया, आई वोंट बी, इसके बाद टोटल लिख देंगे सीइंग प्रिया टुमारो। अगला है क्रिस हैज ऑलरेडी Chris has already traced his relatives. नॉट का शॉर्ट फॉर्म, तो क्रिस हैज नॉट को शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, हैजंट ऐसे लिखेंगे, हैजंट, क्रिस हैजंट, क्रिस हैजंट लिख देंगे। इसके बाद टोटल लिख देंगे, ऑलरेडी ट्रेस्ड हिज रिलेटिव्स, आई हैड वॉकड अ लॉन्ग वे। नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा हैडंट ऐसे लिखेंगे, हैडंट ये हो गया, हैडंट ऐसे लिख देना है, आई हैडंट। श्वेता हैज बीन प्रैक्टिसिंग, नॉट का शॉर्ट फॉर्म, तो वही हैजंट बीन प्रैक्टिसिंग, टोटल लिख देंगे। माई ग्रैंड मदर वॉशेस V5 है तो डज नॉट होगा, नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट, डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट ऐसे लिखेंगे, डजंट ये हो गया, डजंट ऐसे लिख देना है। फिर अगला है यू कैन, नॉट का शॉर्ट, कैन नॉट का शॉर्ट कांट ऐसे लिखेंगे, कांट ऐसे लिख देना है, कांट का नॉट का शॉर्ट कांट। आए क्वेश्चन फिर है आई वुड लाइक टू, तो नॉट है तो वुड के बाद नॉट लगाना, आई वुड नॉट लाइक टू। अगला है वी वर गोइंग, नॉट लिखना है तो वर के बाद नॉट लगा देंगे, वी वर नॉट गोइंग। आई माइट मीट, नॉट लगाना है तो माइट नॉट, माइट के बाद नॉट लगा देंगे, आई माइट नॉट मीट
शी विल ट्राई, विल नॉट का शॉर्ट, विल नॉट का शॉर्ट वोंट, मैं पहले ही बता चुका हूँ वोंट ऐसे लिखना है, विल नॉट का शॉर्ट वोंट। अगला है वी मे हैव, तो नॉट मे के बाद नॉट लगा देंगे, वी मे नॉट, आई नो। अगला क्वेश्चन आई नो भी वन है, तो डू नॉट होगा, आई डू नॉट नो, बाकी लिख देंगे व्हाट शी इज़ डूइंग, आई डू नॉट नो व्हाट शी इज़ डूइंग। अगला है लर्निंग इंग्लिश एट यंग एज माइट हैव चेंज्ड माई लाइफ, नॉट, तो लर्निंग इंग्लिश एट इंग्लिश माइट वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है नॉट, तो माइट नॉट, माइट और हैव के बीच में नॉट लगा देंगे। द रेस्ट क्वेश्चंस we will discuss tomorrow.